ویلکم بیک۔ بلٹن کے آغاز میں اہم اعلان کی بات کریں گے۔ معاہدہ یا پھر پسپائی، ایران کو تباہ کن کارروائی سے پہلے آخری موقع دینا چاہتا ہوں۔ امریکی صدر نے ایک اور دھمکی دے دی ہے، کہا ڈیل نہ ہوئی تو اسے تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہا ایران سے مذاکرات جاری ہیں، معاملات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، امید ہے ایران دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آبدہ ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے۔ بولے ایران بھی اس مرتبہ مذاکرات کی تردید نہیں کر رہا کیونکہ بات چیت تہران کی درخواست پر ہی ہو رہی ہے۔ امریکی صدر نے بھی یہ واضح کر دیا کہ ایران کو آبدہ ہرمز سے گزرنے کی فیس نہیں لینے دوں گا۔ Well, you don't know. I don't know. I think we're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. It's very tough to do what we have planned. When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now. We're talking, and we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is the last chance. ایران آبدہ ہرمز میں کسی دوسرے راستے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر میجر جنرل محسن رضائی نے خبردار کر دیا، واضح کر دیا کہ آبدہ ہرمز کو امریکہ کی شرائط پر دوبارہ نہیں کھولا جائے گا۔ اگر جنگی جہاز بھی لایا گیا تو اسے بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ امریکہ نے فوج اتاری تو وہ بھی نشانہ ہوگی۔ ایران کے منجمد فنڈز بحال اور ہرمز میں مداخلت بند کرنا ہوگی۔ سینئر مشیر نے انکشاف کیا کہ ایران نے یوکرین میں 3 اہداف پر حملوں کی تیاری کر لی تھی، تاہم یوکرین نے فون کر کے ایرانی جہاز پر حملے کو اپنی غلطی قرار دیا، جس پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایک بار پھر متحرک۔ سعودی عرب، عمان، متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین کے وزراء خارجہ کو فون کیا۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور کشیدگی میں کمی کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے فریقین پر زور دیا کہ وہ مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کریں۔ قطر خطے میں کشیدگی کم کرنے اور جامع امن معاہدے کے لیے ہر ممکن سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے حماس کے نئے سربراہ خلیل الحیہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ و خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی صدر نے خلیل الحیہ کو حماس کا نیا سربراہ بننے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ ایران فلسطینی عوام اور ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا، فلسطینی عوام کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ صدر ٹرمپ کے ایران کے ساتھ مذاکرات کے بیانات کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ WTI کروڈ آئل کی قیمت $80.89 فی بیرل پر آ گئی ہے، جبکہ برنٹ کروڈ آئل $84.79 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود پاکستان میں عوام کو پھر بھی خاطر خواہ فائدہ نہیں مل سکا۔ حکومت نے پیٹرول صرف $4.08 اور ڈیزل $2.45 سستا کیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت $331.95 جبکہ ڈیزل $389.93 فی لیٹر پر پہنچ چکی ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان ایران جوائنٹ ٹریڈ کمیٹی کا 10واں اجلاس۔ دو طرفہ تجارت کا حجم $10 ارب تک بڑھانے اور فری ٹریڈ ایگریمنٹ جلد مکمل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر تجارت جام کمال نے پاک ایران تعلقات کو مضبوط معاشی شراکت داری میں تبدیل کرنا وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ اسلام آباد میں پاکستان ایران جوائنٹ ٹریڈ کمیٹی کا 10واں اجلاس وفاقی وزیر تجارت جام کمال اور ایرانی ہم منصب ڈاکٹر محمد عطابک نے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے پاکستان ایران فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو جلد حتمی شکل دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سرحدی لاجسٹکس، کسٹمز اور کارگو کی نقل و حرکت میں حائل رکاوٹیں دور کرنا ہوں گی۔ مشترکہ سرحدی منڈیوں اور الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج کے ذریعے دو طرفہ تجارت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزیر تجارت نے پاکستان کو ایران کا طویل مدتی اسٹریٹجک تجارتی شراکت دار قرار دیتے ہوئے کراچی اور گوادر بندرگاہوں کے ذریعے علاقائی تجارت اور لاجسٹک تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔
कराची सानहर गुल प्लाजा की तफ्तीश ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। SBC और वाटर कॉर्पोरेशन ताउन नहीं कर रहे। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बता दिया। मजीद मोहलत मांगने पर कराची की मकामी अदालत ने DSP आमिर विर्क को 9 अगस्त तक मोहलत दे दी है। DSP आमिर विर्क ने अदालत को बताया 2 इदारों के अफसरान का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक तवक्को है कि दोनों इदारों के अफसरान चहलम के बाद बयान रिकॉर्ड करा देंगे। तफ्तीशी अफसर ने 6 सरकारी इदारों के अफसरान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं। तफ्तीश में तनवीर पास्ता को ज़्यादा जिम्मेदार करार दिया गया है। गुल प्लाजा यूनियन के सदर तनवीर पास्ता समेत दीगर मुलजिम अबूरी जमानत पर है। लाहौर में शोहदा करबला के चहलम का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। शुरका मस्जिद वज़ीर खान के करीब नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। जुलूस की सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, जानेंगे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा। जी, शोहदा करबला के चहलम का मरकजी जुलूस जो कि हवेली अलीफ शाह अंदरून दिल्ली दरवाजे से बरामद हुआ था, अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है और जुलूस के शुरका कुछ ही देर बाद मस्जिद वज़ीर खान चौक के करीब नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे, जिसके बाद ये जुलूस पानी वाला तालाब के करीब पहुंचेगा और तकरीबन रात 9 बजे के बाद करबला गामे शाह पहुंचकर ख़त्म होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो आज चूँकि शहर में शोहदा करबला के चहलम के 12 जुलूस बरामद हो रहे हैं, लेकिन मरकज़ी जुलूस हवेली अलीफ शाह से बरामद हुआ है, तो इसकी सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। सेफ सिटी कैमरों से बराह रास्त जुलूस की मॉनिटरिंग जारी है। जुलूस की जानिब आने वाले तमाम रास्तों को आम ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। ड्रोन कैमरों की मदद से सर्विलेंस भी जारी है। हुकाम का ये कहना है कि जुलूस के अख्तिताम तक तमाम सिक्योरिटी एहलकार अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर मौजूद रहेंगे। तमाम इलाकों में इंटरनेट सर्विस और मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल है, लेकिन पुलिस हुकाम का ये कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किसी भी वक्त ये फैसला किया जा सकता है कि मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल भी की जा सकती है। जी जहांगीर, आपका बेहद शुक्रिया। रावलपिंडी में शहदाए करबला के चहलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से कुछ देर बरामद होगा। अज़ादराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात है। 4,000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों के अलावा रेंजर्स और एलीट फोर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। यासिर हकीम से मजीद हम बात करेंगे। यासिर, बताएगा सूरत हाल। देखें, बिल्कुल शोहदाए करबला के चेलम का जुलूस अब से कुछ देर बाद इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद होगा और इकबाल रोड कमेटी चौक से गुजरकर अपने मुकर्रा और रास्तों से होता हुआ फवारा चौक पहुंचेगा, जहां पर मजलिस बर्पा की जाएगी और वहीं पर नमाज अदा की जाएगी। जिसके बाद इस जुलूस में मज़ीद 2 जुलूस शामिल होंगे। जुलूस डिंगी खुई चौक पहुंचेगा। डिंगी खुई चौक से अपने कदीमी और रवायती रास्ते से गुजरकर रात गए जाकर इमाम बारगाह कदीमी पर अख्तिताम पजीर होगा। इस दौरान जुलूस में छोटे बड़े 6 जुलूस शामिल होंगे। इस जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। इस जुलूस के रूट को सील कर दिया गया और जुलूस में आने वाले जो शुरका हैं उनकी बाकायदा तौर पर जामा तलाशी लेने के बाद उन्हें वॉक थ्रू गेट से गुजारा जा रहा है। इस जुलूस की रूट की CCTV कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और ताजिर तंजीमों की जानिब से जितने CCTV कैमरे मुख्तलिफ मार्केट्स के बाहर लगाए गए थे उन्हें भी बाकायदा तौर पर सेफ सिटी के साथ इंटीग्रेट किया गया है। स्पेशल ब्रांच जो है वो इस रूट की स्कैनिंग कर रही है। जैसे ही इस रूट की स्कैनिंग मुकम्मल होगी और इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला में मजलिस का अख्तिताम होगा तो जुलूस यहाँ से बरामद हो जाएगा। जी, कराची में चहलम शोहदा करबला का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से कुछ देर बाद बरामद होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद बात करेंगे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, बताइए। देखिए, चेले में इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस बस अब कुछ देर बाद जो है बरामद हो जाएगा। मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ। जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब इस वक्त यहाँ पर नेशनल पार्क में मजलिस जारी है। मजलिस जैसे ही ख़त्म होगी जुलूस के शुरका बाहर निकलेंगे और नुमाइश चौरंगी से होते हुए अली रज़ा इमाम बारगाह तक पहुँचेंगे, जहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। उसके बाद जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए मुख्तलिफ कैंप्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनमें पानी और शरबत की सबीलें लगाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल कैंप भी कायम किए गए हैं। पुलिस की सिक्योरिटी के हवाले से हम अगर बात करें तो 5,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार इस जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। जो इस तरफ की गलियाँ हैं उनको कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। MS जीरो रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। इस वक्त जो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बड़ी तादाद में शुरका है जो इस वक्त मजलिस में शरीक होने आ रहे हैं। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त जो है दस्ता जो है यहाँ पर पुलिस का मौजूद है, जो यहाँ पर इस वक्त तैयार है। जब जुलूस जैसे ही बरामद होगा ये दस्ता जो है आगे चलेगा। पहले BDS का अमला जो है स्वीपिंग करेगा, उसके बाद पुलिस की एक लेयर होगी और तीसरी लेयर जो होगी वो स्काउट्स की होगी। जुलूस ऐसा ऐसा रवाना होगा और मगरिब के करीब जो है हुसैनिया ईरानिया पर पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी,
آپ کا बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस की इस्लामाबाद में यौम शहदाए पुलिस के मौके पर खुसूसी तकरीब। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने इस्लामाबाद में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फातह ख्वानी की। इस मौके पर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के चाकोर चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि आज का दिन तजदीद अहद का दिन है। फ़र्ज के लिए जान कुर्बान करना ईमान का हिस्सा है। दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी फोर्सेस सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस शहदा के अहले खाना के साथ हैं। अब्दुल अलीम खान ने गिलगित के पहाड़ों से सिंध और बलूचिस्तान तक तारीखी तरक्याती कामों का भी जिक्र किया। कहा अपने वसाइल से शाहराहों और मोटरवेज की तामीर देखभाल का काम कर सकते हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चेक पोस्टों और जवानों पर फितना और खारिज के दहशत गर्दों की जानिब से जो बुज़दिलाना हमले किए गए, उनके सामने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस एक सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़ी रही। हमें इस बात का मुकम्मल इदराक है कि दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में हमारे जवान अपनी जिंदगियों का खतरा मोल लेकर कौम को अमन दे रहे हैं। मैं पूरी कौम की तरफ से इन तमाम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ, उनके अहले खाना को सलाम पेश करता हूँ और उनके ख़ानदानों को ये यकीन दिलाता हूँ कि पूरी रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस उनके साथ इस मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिला के खड़ी। हम मुल्क भर में मोटरवेज और हाईवेज के इस पूरे नेटवर्क को पहले से ज़्यादा वसी बना रहे हैं। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से लेके सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब की शाहराहों तक एक तारीखी डेवलपमेंट का काम जारी है। खुशी की बात यह है कि 2024 में NHA का कौमी रेवेन्यू तकरीबन 66 अरब रुपए था। अल्हम्दुलिल्लाह 2026 में ये बढ़कर 127 अरब रुपया हो चुका है।